What were the factors that worked in the drafting of American Constitution? So these are the kind of questions which are very straightforward. कुछ नहीं ज़्यादा आप सोचना क्या factors थे which went into drafting. Do you agree with Charles Beard's view of the Constitution being an economic document? So again, historian viewpoint, Charles Beard कौन है, ठीक है? And if we understand the viewpoint of Charles Beard, who has countered him, और वो counter करने में किस किस ने बोला कि रॉबर्ट मैकडोनल्ड का नाम आपको याद रखना है, फॉरेस्ट मैकडोनल्ड का नाम याद रखना है, ठीक है? तो वो क्या है, वो स्पेसिफिकली आपको ऐसे क्वेश्चंस में याद करना ही पड़ेगा. दिस इज अ वेरी फेमस PYQ दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस. सो PYQs अप्रोच को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आएगा, दिस कुड बी अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टेटमेंट विच कैन कम इन योर क्वेश्चन पेपर, राइट? लेट अस सी. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. If I say the introduction, American Constitution was drafted by the Philadelphia Convention. Very, very good information. Okay, of 55 delegates and with ratification of 9 states out of 15 on 4th of March. देखो अब यहाँ पे दिक्कत हो ना, 1989 लिख दिया. अब यहाँ पे 1789 it came into existence. This is what I was talking about, that dates is one problem which I have seen with many people. पता नहीं यूपीएससी इसमें कितना मार्क्स डिडक्ट करेगा, बिकॉज करना तो नहीं चाहिए एज सच, बिकॉज दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, बट इट मे हैपन. दैट्स वाई ऑल ऑफ यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू डेट्स, विद रिस्पेक्ट टू नेम्स. अभी आगे आपको दिखाऊंगा कि टॉपर्स भी नेम्स में गलतियाँ करते हैं. इंट्रोडक्शन वेरी वेल रिटन. फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हैज़ बीन मेंशन्ड. डाटा हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन कि हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर, एंड इवन द ईयर हैज़ बीन मेंशन. इवन दो गलती होगी लिखने में ईयर में, बट स्टिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि जब बाकी सब ठीक है थोड़ा सा नज़रअंदाज हम कर सकते हैं. बट आई वुड से गुड इंट्रोडक्शन फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन. देन डायरेक्टली द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेंशन्ड. ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बहुत कोर डिमांड नहीं है इस क्वेश्चन की. क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है? फैक्टर्स दैट वर्क इन ड्राफ्टिंग ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. सो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया. इट इज़ वेरी ब्रीफ इन नेचर, बाइकैमरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, रिजिड इन नेचर इन जनरल. तो वो सारा उन्होंने मेंशन किया. चाहो तो इसकी जगह इसके एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, दैट वुड हैव बीन बेटर. दैट इज द ओनली सजेशन दैट आई कैन गिव. रेस्ट इट्स नॉट द कोर डिमांड, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. फैक्टर्स दैट वेंट, सो कॉमन लैंड, एडवर्ड हुक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्ना कार्टा. ओके, देन social contract theory, basic rights. Taylor mentioned the major role of philosophers in this. Thomas Hobbes की theory ने इनको influence किया, right? Thereafter, principle of separation of power, philosophy of the war of independence, a declaration of rights के अंदर जो specific verses which were mentioned, है ना, कि the pursuit of happiness etc. All of this also affected the drafting process later on. So various factors have affected the drafting of American Constitution. Okay, instability in monarchy in Europe was also responsible why they went for a republic. They have been working in the American land since 1607. The first colony, Jamestown, has been created. So that as a result of this, because of those 150 years of hard work, eventually capitalism became a way of life in America, and that also became a part of their constitution. So all those factors which have influenced one or the other provision of the American Constitution could be written in the first half, and this is something which has been easily covered by the topper. So let us see, mention provisions also, and even talked about the specific factors which went into the drafting process of the American Constitution. You can even mention about the debates. There were certain debates also, फेडरलिस्ट वर्सेस एंटी फेडरलिस्ट, स्मॉल स्टेट वर्सेस लार्ज स्टेट, बहुत सारे कॉन्ड्रम थे इसमें. सो दे ऑल्सो वर्कड इन दे ऑल्सो वेंट इनटू द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Charles Beard comes out with a viewpoint that it is nothing but an economic document. Majority of the people who signed it, majority of the delegates who were in the America, they were slave owners, land owners, and those who fought this war of independence eventually got benefited by it, because American Federation eventually was going to provide them the money which was spent by them. Like even in the case of the General Washington, he got a lot of land and money back once he became the president. Okay, so in an economic interpretation of the American Constitution, this is the book which is written by him. So that is a very very good approach. Sometimes when you write historiography, तो हम सिर्फ नाम लिख के छोड़ देते हैं. If we can mention the book also, this further increases the overall authenticity of our answer. Like if you write David Thompson in his book, okay, Europe since Napoleon, तो वो बढ़ जाता है, impact create हो जाता है easily.
ठीक है, उसको अंडरलाइन भी कर दिया था कि दिखना चाहिए चेक करने वाले को कि बहुत मेहनत करके आए हम लोग. देन this is what the Charles Beard says on the basis of this, but this viewpoint is eventually being questioned. Okay, and here you can mention the name of Robert E. Brown and Forrest McDonald, who says that it is a holistic or a comprehensive document. It is not just having the economic provision, it is having fundamental right, it is having the whole structure, how the state should perform its duties, all those things, judiciary, bicameral legislature, etc. So all those processes are there. So how can we call it just as an economic document? So I would say very straightforward question, factual question. Okay, historiography is going to be required. फैक्टर्स स्पेसिफिकली हमारे जॉट डाउन करने हमें आने चाहिए. अगर वो सब हम कर सकते हैं तो वी कैन गेट वेरी गुड मार्क्स हियर. ओके, लाइक वी कैन सी कैंडिडेट एड्रेसिंग बोथ साइड्स ऑफ द डिबेट बाय गिविंग काउंटर आर्ग्यूमेंट. दिस इज हाउ द डिबेट शुड बी एड्रेस. एक सिंगल पर्सपेक्टिव लेकर नहीं बैठ सकते हम एग्जाम में, राइट. दिस मेक्स द आंसर वेल बैलेंस एज बोथ द पार्ट्स आर सफिशिएंटली डिस्कस विदाउट इट लुकिंग lopsided. So these suggestions which are given in the PPT, they are written pretty well. बहुत टाइम ले लेके एक सजेशन लिखा जा रहा है, तो प्लीज़ कोशिश करिए इनको अच्छे से पढ़ने की. Try to even understand them in a very specific manner because these things are going to help you in their final exam. Okay, कॉपी चेकिंग भी जब होती है ना तो इतना कोई आपका लिख नहीं सकता, बिकॉज ये लिखने के लिए कम से कम हफ्ता बैठना पड़ता है एक अच्छे टॉपर को. इनफैक्ट आई वुड से उसको रिव्यू मुझे करना पड़ता है, देन ओनली इट कैन हैपन. That's why what we are doing in this course is nothing sort of a miracle from answer writing point of view, from suggestion point of view, from understanding the philosophy of toppers. And this is something which you should learn, use it very wisely. Hi, so welcome to Prep Career. Today I am going to discuss about a program which can help you in improving your answer writing skills. Answer writing skills, as all of us know, are very paramount for getting maximum marks in optional. And optional में अगर marks लेके आने हैं तो अभी आपको ये सब चीज़ start करनी पड़ेंगी. So if you are preparing for 2025, हो सकता है कुछ cases में आपका prelims इस साल ना निकला हो, right, in 24. So you have to take the long road. बहुत लंबा road है. आप हम आराम से 3-4 महीने optional को अच्छे से अभी dedicate कर सकते हैं, right? So during this time, when you have a lot of time, उसको अच्छे से यूटिलाइज किस तरीके से करें. दिस इज वेयर डॉन कम्स इन. डॉन का जो मेजर फोकस है वो किस चीज़ पे रहता है कि आप लोग आंसर राइटिंग सीखिए. बिकॉज खुद से जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं वो रेगुलर नहीं रह पाते. कभी सोचते हैं PYQ लिख दे, कभी सोचते हैं कि PYQ सारे रिपीट नहीं होते. देयर इज ऑलवेज एम्बिग्विटी कि लिखना क्या है, इवेल्युएट कौन करेगा, डिस्कशन कौन देगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम क्या करते हैं, 2-4 दिन रेगुलर रहते हैं फिर छोड़ देते हैं, जो गैप्स आ जाते हैं प्रिपरेशन के अंदर. इन सब को हटाने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द डॉन प्रोग्राम. दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द 15th. ओके, मंडे से स्टार्ट करेंगे. नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी कवर्ड, तो अब हम धीरे धीरे बात करेंगे. मैं आपके साथ शेड्यूल भी शेयर करूंगा इसका कि हम शेड्यूल में क्या है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑन डेली बेसिस आप लगभग 2 क्वेश्चंस को लिखने वाले हो, ठीक है. एक का आप आंसर लिखोगे, एक पे आप ब्रेनस्टॉर्म करोगे. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन टेक्निक विच वॉज एबल टू हेल्प मी इन अचीविंग 324 मार्क्स. दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रमोट कि भाई इसको आप जरूर करिए ऑन अ डेली बेसिस ऑन फ्यू क्वेश्चंस, सो दैट कि हर बार लिखने का हो सकता है टाइम ना हो. सो आप आधे घंटे के अंदर आराम से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं और एक को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट 4 मंथ्स, है ना, जो 4 महीने ये प्रोग्राम चलने वाला है, यू विल बी एबल टू कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. व्हाट शुड बी दी अप्रोच, तो अप्रोच बहुत सिंपल है. अप्रोच जो होनी चाहिए इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे एज पर द शेड्यूल इटसेल्फ, एंड देन ऑन डेली बेसिस यू राइट फ्यू आंसर्स. हाउ टू एनालाइज द आंसर्स, तो वो हम कुछ तो आपको इवैल्यूएशन करके देंगे ही देंगे. एंड फिर आपको जो डिस्कशन मिलेगा वीडियो, उसके बेसिस पे भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, स्ट्रक्चरिंग और अच्छी कैसे हो सकती है. हाउ टू इनकलकेट द डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन का बहुत ही एक ही तरीका है अच्छा, दैट यू कैन राइट द आंसर ओनली फॉर 1 डे. जो जिस दिन क्वेश्चन आएंगे उसी दिन आपको लिख के नेक्स्ट डे तक सबमिट करना पड़ेगा रफली, कि 1 बजे आपका आंसर हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट डे 1 PM तक आप वो ब्लॉक हो जाएगी विंडो. और डिसिप्लिन इसी तरीके से आ सकता है. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ऑलवेज देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग वंस, ठीक है. तो आप पेंडिंग में हमें कभी नहीं जाना है. फोकस रहना चाहिए देखो अपस्किल पे, कि हम अपने आप को अपस्किल करें, राइट. दिस इज़ नॉट अ प्रोग्राम फॉर दो स्टूडेंट उन्होंने कभी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है. जो पढ़ चुके हैं, एक लेवल का नोट क्रिएशन कर चुके हैं, हो सकता है स्मॉल नोट्स ना हो, एटलीस्ट हैंड आउट्स हैं, तो उनको आप स्मॉल में नोट्स में कन्वर्ट करें एंड PYQs को सॉल्व करें. दिस इज़ अबाउट अपस्किलिंग. प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली बेसिस पे. देन मेंटरशिप मिलेगी आपको, है ना. यू गेट मेंटरशिप फ्रॉम मी ऑल्सो, फ्रॉम अदर फैकल्टीज ऑल्सो हु आर एसोसिएटेड विद अस फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल. देन ऑल्सो द कवरेज गोइंग टू बी मैसिव. पूरा सिलेबस को ही हम कवर करेंगे. दिस इज रफली द UPMC approach which is going to work with respect to this DAWN program. So if you are somebody who is preparing for 2025, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, ठीक है.
ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। डेली आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है, डेली आपको कुछ आंसर्स लिखने भी हैं, डिस्कशन वीडियो मिलेंगे, मॉडल आंसर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशन रहेंगे, 4 महीने तक प्रोग्राम चलेगा। 48 आवर्स के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको इवेलुएट होकर कॉपीज़ मिल जाए। सो दिस इज समथिंग विच इज़ फ्रॉम आवर साइड, ऑलराइट। एंड जैसे हम देखें, देखो कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपको आंसर फ्रेमवर्क मिलेगा, अच्छे से हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, राइट। एंड पूरे तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा पूरा आंसर। एंड फाइनली जो कंक्लूजन भी होता है उसमें हमें कंटेंट एनरिचमेंट बॉक्स डालते हैं, जिसमें हम हिस्टोरियन, बहुत बच्चों को हिस्टोरियोग्राफी में दिक्कत है कि मैं इसमें क्या करूँ, तो हिस्टोरियोग्राफी भी यहाँ पे तरीके से दी होती है। सो इस तरीके से आपके पास बहुत अच्छे मॉडल आंसर्स निकल के आ जाते हैं एंड साइड बाय साइड यू आर एबल टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। अब देखो हमने क्या किया है कि रफली 20 एक दिन में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, 20 डेज ना, तो रफली 1 महीना आपको एक पार्ट में लगने वाला है। इफ़ यू सी लाइक स्टार्टिंग फॉर 22, 15 तारीख से आपको कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, इनिशियली 7-8 वीडियोस विच आर रिलेटेड विद आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग करने से पहले आपको थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा, थोड़ा समझना भी तो पड़ेगा आंसर लिखते कैसे हैं। तो वो फर्स्ट वीक आप उसमें स्पेंड करिए। वंस यू स्पेंड दिस फ्रॉम 22 स्टार्ट राइटिंग, पोर्टल एक्टिव हो जाएगा आपका, एक्सेस के थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आर्कोलॉजिकल, फिर आपका लिटरेरी सोर्सेज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो, इंडस वैली, फिर सैटरडे संडे आप रिवाइज करिए, बाकी चीज़ें भी अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं जीएस में उसको भी इनकॉर्पोरेट करिए। देन वीक 2 अगेन एंशिएंट इंडिया, वीक 3, वीक 4, तो लगभग आपका जो वीक 4 होगा वो लगभग फिनिश हो जाएगा बाय 16th ऑफ अगस्त आपका एंशिएंट फिनिश हो जाएगा। तो लगभग 4 महीने देखो ये प्रोग्राम चलने वाला है। और आपको डेली बेसिस पे ये ध्यान रखना कि भाई जो पोर्टल का एक्सेस है वो 1 दिन के लिए मिलता है फॉर राइटिंग आंसर्स, ओके। सो दैट इज़ समथिंग विच वी सी हेयर। तो ओवरऑल जो आपके वर्किंग डे हो जाएंगे, मतलब जो आपको लिखना आंसर्स, वो 80 से 85 के बीच में रहेंगे, ठीक है। और जो प्रोग्राम है वो पूरा 4 महीने के आसपास ही निकल जाएगा, बिकॉज सैटरडे संडे आप इंक्लूड करोगे तो वो लगभग 4 महीने हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच विद विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल। बट मेक श्योर दोज ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, एटलीस्ट एक लेवल का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तभी आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। इफ़ यू आर समबडी कंप्लीटली न्यू, आई वुड रेकमेंड आप फाउंडेशन कोर्स या AEP के साथ चलिए, ओके उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू बी डिसिप्लिन्ड, कि भाई आंसर राइटिंग सिर्फ नहीं हो पा रही, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ़ यू आर एट दैट लेवल, मेक योर लेवल बेस्ट, बिकम पार्ट ऑफ दिस। एंड 4 महीने में ना लगभग आपका by the end or by the beginning of November itself you will be able to finish off this batch. All right, so all the very best, thank you so much। इसका पार्ट बनिए और अच्छे से यूटिलाइज करके नेक्स्ट ईयर 300+ मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।